Hello, you're watching CVR News English. This is Savira Kuttapalli. Welcome to Primetime Bulletin. Well, before moving ahead, let's have a quick look on headlines first. 10 newborns burned to death. UP Deputy CM Rajesh Pathak seeks action against officials after political row erupts over VIP welcome. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav calls for probe into Jhansi Hospital fire, slams UP Chief Minister Yogi Adityanath. Priyanka Gandhi challenges PM Modi, Amit Shah over caste census, spreading lies about her brother Rahul Gandhi that he is against reservation. Mallikarjun Kharge criticizes Prime Minister Narendra Modi over infiltrators issues, accusing him of stoking fear and division for political gain. US President Donald Trump names Caroline as White House press secretary. Well, moving to the lead stories, Congress National President Mallikarjun Kharge, while addressing a public meeting, announced key promises for the people of Jharkhand if the India Alliance comes to power. He also stated that current rupees 1,000 provided under the Maya Samman Yojana would be increased to rupees 2,500 starting in December. Well, Kharge also promised that every mother would receive rupees 2,500 from next month. Well, additionally, he also vowed to increase the free ration from 5 kg to 7 kg per person, provide gas cylinders for rupees 450 and implement a family insurance scheme offering coverage up to rupees 15 lakh for every poor family. सेब हो, सेब कौन सा? क्या हिमाचल का सेब, क्या जम्मू कश्मीर का सेब, क्या मीर साहब का सेब? कौन सा सेब है? अरे पहले तुम अच्छा बनो, तुम देश के लिए क्या करे वो बोलिए, किनकी भलाई किए, कितनी उनकी इनकम बढ़ी, किनके उनके बच्चे अब कितने ग्रेजुएट बने, कितने आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, बड़े बड़े नौकरियों पे गए, ये बताओ ना भाई। अरे उनको टाइम पे स्कॉलरशिप नहीं देती सेंट्रल गवर्नमेंट, दलितों के बच्चों को नहीं मिलता, आदिवासी बच्चों को नहीं मिलता, खैर माइनॉरिटी का तो छोड़िए, उनको तो वो लोग कुछ भी नहीं देते, बैकवर्ड क्लास को नहीं देते, गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं उनके पास सिवाय आवाज दो बोलने का एक ही है, एक ही भाषण करने का। भाई आपके भाषण से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए राशन चाहिए। क्या चाहिए? राशन चाहिए, वो दो हमारे लिए, वो मजदूरी दो, तो ये मजदूरी भी नहीं देते, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, इसलिए आप लोग डरने वाले नहीं हैं। अरे आप लोग तो जंगल में रहकर हर एक का मुकाबला किए हैं, ब्रिटिश लोगों का मुकाबला किए हैं, क्या आप लोग ऐसे मोदी और शाह को डरेंगे? डरेंगे क्या? इतना बारीक आवाज नहीं, अरे वो तो इतना डराते फिर भी आप नहीं नहीं नहीं, आप डरेंगे, डरेंगे, ये है मजबूती, आप डरना नहीं। अब मैं बताता हूं हम आपको क्या करने वाले हैं, अब तो थोड़े करते आए हैं, आगे हम क्या करेंगे। इंडिया गठबंधन सरकार आपको जो मैया सम्मान योजना है, अब कितना दे रहे हैं?
1000 रुपए हम 2500 रुपए दिसंबर से देंगे। अगले महीने से आपको 2500 रुपए हमारे माताओं को मिलेगा। ठीक है ना? आपको होना। इसीलिए आप गठबंधन सरकार को फिर से हुकूमत में लाओ। हर एक को 5 किलो राशन के जगह 7 किलो राशन दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार दिलाने का हम पूरा कोशिश करेंगे और उनको रोजगार देंगे। 15 लाख रुपया तक ये फैमिली यानी परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना हम करेंगे। किसानों को धान का एमएसपी 2400 रुपए है। उसको उसकी जगह 3200 रुपए हम करके दिखाएंगे। ये हो गया हमारे वायदे। और एक बात आपको बहुत डराते हैं शाह। The Prime Minister Narendra Modi and Union Minister Amit Shah of spreading falsehood about her brother Rahul Gandhi, claiming he is against reservation. She also stated that these leaders are intimidated by Rahul Gandhi's push for a caste census in the country. Speaking at a rally in Shirdi, Maharashtra, she also criticized the BJP for allegedly depriving Maharashtra of projects worth rupees 10 lakh crore. Well, Gandhi further condemned the disrespect towards Chhatrapati Shivaji Maharaj, asserting that while leaders like Modi frequently mention Shivaji's name, they fail to honor him. Well, all of us are proud of Maharashtra, but in this land, Shivaji Maharaj is being insulted and the people of Maharashtra are being insulted, she said. ने दिलवाई, इस देश के किसानों ने दिलवाई, इस देश की को आजादी आप सबने दिलवाई, आपके पूर्वजों ने दिलवाई। आज वो आजादी खतरे में है, वो संविधान खतरे में है जिसके लिए हम लड़े। ये कुछ भी कह दें, डर गए हैं ना पिछले चुनाव को देखकर, इसलिए सब अब संविधान कह रहे हैं, सब अब कह रहे हैं आरक्षण की बात कर रहे हैं क्योंकि डर गए हैं। लेकिन इनकी असलियत नहीं है ये, इनकी असलियत छिपी हुई है अंदर। आप देख सकते हैं इस असलियत को। पिछले चुनाव में इनके नेता कह रहे थे हम संविधान को बदल डालेंगे, आज संविधान की बात कर रहे हैं। 2.5 सालों से सरकार रही है इनकी, आपके लिए कुछ नहीं किया। अब स्कीम किस पे स्कीम निकाल रहे हैं पिछले 4 महीनों में। ये गलत तरह की राजनीति है, गलत तरह की विचारधारा है। ये देश एक लोकतंत्र है, संविधान हमारी देश की जनता ने बनाया है, कोई इसे नहीं तोड़ सकता, कोई इसे बदल नहीं सकता बगैर आपके इजाजत। तो मैं आपसे ये कहने आई हूं, इजाजत मत दो, ऐसी राजनीति को मत लाओ दोबारा अपने प्रदेश में, जो आपका इस्तेमाल करे, जो आपके बीच में फूट फैलाने की कोशिश करे, और जब समय आता है तो आपके प्रति जवाबदेह भी ना बने। जितने भी नेता इस मंच पे बैठे हैं, जितने भी नेता आपके सामने आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे कितना बड़ा नेता हो, देश का प्रधानमंत्री हो, आपने मंच पे बिठाया है, आपने वोट देकर मंच पे बिठाया है। सत्ता हमारी नहीं है, आपकी है। पहचानिए इस सत्ता को। इस प्रदेश के किसानों को मजबूत बनाना है, इस प्रदेश की बहनों को मजबूत बनाना है, इस प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाना है, उनको एक मजबूत आगे का भविष्य देना है।
और ये भविष्य आप अपने लिए खुद बना सकते हैं। अगर आप सही राजनीति को चुने, अगर आप सही नेताओं को चुने, आप अपनी राजनीति में ये डिमांड करें, ये मांगे कि हमें सच्चाई चाहिए, हमें जवाबदेही चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। तो जब चुनाव में नेता आते हैं, भाषण देते हैं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, लेकिन साथ साथ उनकी कार्यशैली भी देखिए, समझिए। कांग्रेस के कितने प्रदेश हैं आज, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटियां दी, चुनाव के खत्म होते ही जैसे ही सरकार बनी, पहले दिन से गारंटी शुरू हो गई। Well, following the tragic fire incident in Jhansi, Gautam Buddha Nagar Fire Department, led by CFO Pradeep Kumar, conducted an inspection at the Child PGI Hospital. Well, during the visit, the team assessed the fire safety systems, focusing on functioning of sprinklers, smoke detection systems and fire pumps. While the hospital's maintenance team was present and several systems were found to be operational, issues with the smoke detection system were defined. Well, also the fire department has issued a notice to the hospital requesting that the necessary repairs be made within 15 to 20 days. Well, Kumar also emphasized that the hospital had not conducted a mock drill, a crucial part of emergency preparedness, and assured that future drills would be conducted. He also mentioned that non-compliance would be reported to higher authorities. आप फोन के प्लीज आ जाएंगे, जरूरी है, हम जितना वेट करेंगे कि पर्टिकुलर नहीं हो पाएगा, तो इमीडिएटली आएगा, डायरेक्टली आपको भी दे आएंगे, ठीक है ना। हम लोग कहाँ वेट कर रहे हैं, मुझे बाद में अगर सिस्टम ठीक करके नहीं मिला तो मुझे पता कितना डिटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। Most of the systems are. इसी कौन देखता है? हाँ, कैसे निकलेगा ये बदलाव? चेक किया है? आइए पंप पे ले चलिए। सर पंप हाथ दो। अच्छा है कि आपका पंप यूट्यूब पे देखेंगे ना कि डॉक्टर साहब लोग, नर्स लोग साहब लोग बच्चों को छुट्टी बाहर ले जाना, बट दिस क्रिटिकल एनआईसी, तो हमें वो प्लान करना होगा कि हम इमरजेंसी केस में बच्चों को कैसे ले जाएं, बट वन सेकेंड विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट यू नो। सबसे बड़ी मैडम है डॉक्टर, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है हमारे साथ, जो हमारे साथ जवाब कैसे कोई बता
होते रहते हैं जो हमारा, क्योंकि फ्री एंट्री नहीं होती है, सभी कीज हम रोज तो उसकी कीज हम लोगों ने निरीक्षण किया है, क्या निरीक्षण में आप लोगों ने पाया है अब तक? देखिए, कमिश्नर महोदया गौतम बुद्ध नगर के आदेश के क्रम में, निर्देश के क्रम में झांसी की दुखद घटना के होने के पश्चात हम लोग यहाँ पे आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ये निरीक्षण कर रहे हैं, मैडम पहले भी और मुख्यालय स्तर से भी हम लोगों को पहले भी जो है हम लोगों को तत्काल हम लोगों को In Indore, Madhya Pradesh, police seized over 8,000 litres of illicit liquor worth more than rupees 1.5 crore, which was being smuggled to Maharashtra hidden inside a cement mixture. While SP Rural Ritika Vasil revealed that police perceived a tip-off about the suspicious vehicle, which was a specially designed cement truck. Upon checking, the authorities found the large quantities of liquor concealed in the truck, and the driver, identified as Kamlesh Jat from Rajasthan, revealed he had picked up the liquor from Ambala and was transporting it to Maharashtra. Investigations are underway to identify others involved in the smuggling operation. तुम्हें 22 साल हो गए सर्विस में? जी सर। सावेर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कल कि एक मिक्सचर है जो जा रहा है सीमेंट ट्रक का, जिसमें शराब हो सकती है। इसमें पुलिस ने चेकिंग की और इसको गाड़ी को जब पकड़ा, ड्राइवर से पूछताछ की, उसने कुछ अच्छे से बता नहीं पाया। जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब मिली। टोटल जो क्वांटिटी है वो 8,000 लीटर के करीब है और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 1.25 करोड़ की शराब पकड़ी गई है। इस ड्राइवर द्वारा बताया गया कि जो गाड़ी है वो राजस्थान की है, ये भी राजस्थान का रहने वाला है। इसका नाम कमलेश जाट है और ये राजस्थान से अंबाला की तरफ गया था और वहाँ से इसने गाड़ी भरी और वहाँ से ये महाराष्ट्र की तरफ शराब लेके जा रहा है। ये एक सीमेंट का ट्रक था जिसपे अगर ऐसे देखें तो बिल्कुल भी शक नहीं हो सकता है और इसमें से शराब डालना और निकालने की जो पेटियां हैं वो भी बहुत मुश्किल से इसमें डलेंगी और निकलने में भी बहुत मुश्किल है। इससे अभी पूछताछ की जा रही है कि पुराना इसने अगर ऐसा कभी किया है और उसमें और कौन कौन इन्वॉल्व हैं उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। तुम्हें 22 साल हो गए सर्विस में? जी सर। सावेर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कल कि एक मिक्सचर है जो जा रहा है सीमेंट ट्रक का, जिसमें शराब हो सकती है। इसमें पुलिस ने चेकिंग की और इसको गाड़ी को जब पकड़ा, ड्राइवर से पूछताछ की, उसने कुछ अच्छे से बता नहीं पाया। जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब मिली। In a move to tackle illegal mining in Bihar, Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha announced that the state government has deployed drones to monitor mining activities. Sinha emphasized the government's strong commitment to eradicating illegal land mining. While which has become a significant concern in the state, he further urged the public to actively participate by reporting any instance of illegal mining and stressing that citizens' cooperation is vital for the success of the initiative.
The use of drone is a part of a broader effort to strengthen surveillance and enforce stricter regulations on mining activities across Bihar. हमारे कुछ पदाधिकारियों का संवेदकों के साथ संलिप्तता उजागर हो रही है, क्योंकि संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार जो फाइन किया गया, विभाग के संज्ञान में वह मामला आया है कि उसमें किस तरह से गड़बड़ी की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि गया जिला अंतर्गत 4 अवैध खनन संबंधी मामले में आरोपित दंड की राशि कुल 31 करोड़ 25 लाख जुर्माना दंड की राशि। Shazia BJP leader strongly criticized Rahul Gandhi for his confusing and nonsense remarks, calling his understanding of politics and the constitution flawed. Well, he argued that Gandhi's comparison of Prime Minister Modi to Joe Biden and his accusations about Maharashtra's government were baseless, and claiming that Rahul's repeated controversial statements reflect his lack of clarity and understanding. He also questioned Gandhi's alliance with Sharad Pawar and the Mahavikas Aghadi, challenging him to break ties with power if he truly opposed corruption. Well, regarding Maulana Khalilur Rahman Sajjad Nomani's viral statement about BJP supporters, she condemned it as the political motivated attack disguised as religious advice. She also accused Nomani of using religion to further a political agenda, alleging that such actions were aimed at preventing the progress of Muslims and stifling their access to government schemes. She also termed that this as vote jihad, emphasizing that such divisive tactics were detrimental to both the country and the Muslim community. देखिए, ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी ने इस तरह की उल जलूल बातें की हैं, बहकी बातें की हैं। तो देखिए, याददाश्त तभी हो सकती है अगर दिमाग हो, मेमोरी तो तभी होगी अगर माइंड हो। और राहुल गांधी जी कितने कोरे कागज की तरह हैं, सब जानते हैं। जैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे उनका दिमाग भी है, और उस दिमाग की उपज ही है इस तरह की सोच, जिसमें वो तुलना प्रधानमंत्री जी की जो बाइडेन से कर रहे हैं। काश वो सुनते प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक क्या करते हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या समझ है, वो किस तरह से पूरे दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, किस तरह से पूरी दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हम लोग जो है शांति के रास्ते पे जा रहे हैं। और देश में देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था को देखिए, हमारी सब पॉलिसीज को देखिए। तो राहुल गांधी है। जब कोरा बिल्कुल आपका दिमाग होगा, कोरा मन होगा आपका, और कोरा आपकी समझ होगी संविधान की, तो यही सब होगा। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार को लूटा गया और वहां पर अडानी मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, विधायकों को खरीदा गया, और ये सब धारावी की 1 लाख करोड़ की जमीन लेने के लिए किया गया। क्या कहते हैं? देखिए, राहुल गांधी बार बार इस तरह की बात करते हैं, मुंह की खानी पड़ती है। कभी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, कभी हाई कोर्ट फटकार लगाता है, चाहे वो पेगासस हो या फिर रफाल हो या फिर संविधान की बात हो या फिर आरक्षण की बात हो। अब इन्होंने एक नया सुर्रा छोड़ा है। अब पहले उनसे पूछिए कि शरद पवार जो बाकायदा मिलते हैं अडानी जी से और कहते हैं कि अडानी जी की देश को जरूरत है, देश हित में काम कर रहे हैं अडानी जी, और अडानी जी को विलन की तरह नहीं देखना चाहिए, और जो खुद कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अडानी जी, तो उनसे गठबंधन क्यों किया है राहुल जी ने? अब राहुल जी से ये भी पूछिए कि चाहे पिनरई विजन हो, लेकिन पिनरई विजन तो जाहिर है केरल के हैं और वो तो खुलकर मुखालफत भी कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी की, लेकिन अशोक गहलोत ने क्यों टैप किया था उनके साथ इतनी देर? Chandrababu Naidu passed away today due to cardiac arrest after battling a prolonged illness. He was a well-known figure in the political landscape of the state, particularly for his role as a legislator in the early 1990s.
In 1994, he was elected as the member of Legislative Assembly for the Chandagiri constituency, a position that placed him in the political spotlight in the region. However, Rammurthy Naidu's political journey was marked by swifts in party allegiance ahead of the 2002 general elections. He also made the decision to leave the Telugu Desam party and join the Indian National Congress before eventually returning to the TDP. Despite his political experience, Rammurthy Naidu's health began to deteriorate in recent years, leading him to step back from active politics. Well, those were the latest updates in this bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Stay tuned.